Okay, ma'am. ठीक है. So same way, see, pressure can be like with time. अभी तक मैंने तुम्हें बोला कंसंट्रेशन चेंज कर रहे थे, तो हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे थे इक्विलिब्रियम पे. सो विथ टाइम देयर विल बी चेंजेस इन प्रेशर आल्सो for gaseous reactant, for a gaseous reaction. Will there be or not? Can you relate it or not? Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वैसे वैसे प्रेशर भी चेंज होगा. तो जैसे मैंने तुम्हें अभी लिखना सिखाया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. सो कैन यू गिव मी द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर दैट अर्लियर रिएक्शन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर? विल यू बी एबल टू राइट इट? विल यू बी एबल टू राइट? कंसंट्रेशन की जगह क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ कंसंट्रेशन, जिस भी चीज का कंसंट्रेशन होगा उसी के प्रेशर से हम लोग रिप्लेस कर देंगे. तो बेसिकली जो कंसंट्रेशन ऑफ ए था उसको हम लोगों ने, ये एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिस्पेक्टिवली. कैन वी राइट लाइक दिस? कैन वी राइट लाइक दिस और नॉट? Yes, ma'am. मैम कोएफिशिएंट सेम रहेंगे? कौन से? हाँ, सेम रिएक्शन के लिए मैंने बोला था, वी आर डूइंग फॉर द सेम जनरल रिएक्शन व्हिच आई डिड अर्लियर. सॉरी, कैन यू गेट इट? सेम रिएक्शन जो मैंने पहले कराई थी, मैं उसी रिएक्शन को ही लेकर के वापस से करें जिससे तुम रिलेट कर पाओ इजीली. कैन यू गेट इट? सो दैट आई मूव फर्दर. मैम वो n होगा ना मैम, वो मैं कह रहा हूँ. सॉरी, हाँ, kb raised to the सॉरी, माय मिस्टेक. यस, इट इज n. Okay, so now what will happen? हमें कब पढ़ना है? This we have to do when this becomes equal. So what will happen when they become equal? I will write partial pressure of A raised to the power of m, partial pressure of B raised to the power of n is equal to Kb, and then partial pressure of C raised to the power of O and partial pressure of D, and this is raised to the power of P. And what does PA, PB, PC and PD represent? What do they represent? This is Partial representing pressure of Pressures at individual gases. equilibrium. yes, so this is representing respectively. जैसे हमने वहाँ concentration represent किया था, this is representing partial pressure of A at equilibrium. Similarly, this will be representing partial pressure of B at equilibrium condition, क्योंकि हम equilibrium के लिए ही निकाल रहे हैं, at equilibrium, and this will be D at equilibrium. So फिर से वही चीज करें, constant on one side and variables on the other side. So देखो, जैसे वहाँ concentration लिखते थे, active mass लिखते थे, similarly what is coming over here? जैसे वहाँ active mass के लिए किया था, तो यहाँ पर क्या term Partial है? pressure. ओके, और ये भी क्या होगा? kf upon kb. Will it be constant or it will be variable? Constant. And how do you represent a constant? How do we represent a constant? K. K. And but how is this K differing from that K? Because it was related to concentration. Here we are talking about in terms of pressure. So how to denote, मतलब उसको हम कैसे differentiate kp. करें? Yes, so we will use a small notation P for here to represent कि हमने ये जो concentration निकाली है, इस बार हम लोगों ने concentration ना लेकर के pressure की निकाली है. So Kp represents, this is called as, this is for equilibrium, so I'm calling it as equilibrium. K is a constant term, so it will become constant with respect to what? वहाँ पे वो concentrations के लिए था, Pressure. with respect to Partial pressure. yeah, or you can say pressures. Okay, देखो same way में आया, product upon reactant ratio raised to the power of their coefficient. Isn't it same? Just like Kc? Isn't it same? Yes, ma'am. Just like Kc? Only concentrations are getting replaced by partial pressures. So same way, tell me what will be the units of Kp? Same way, what will be the units of Kp?
अगर हमें करना पड़ा तो फिर से वही लिखोगे, एटमॉस्फेयर टू द पावर ओ, एटमॉस्फेयर, सपोजिंग मैंने पार्शियल प्रेशर के यूनिट्स फ्रीक्वेंटली हम लोग जनरली मेजर करते हैं ना, देन अगेन एटमॉस्फेयर टू द पावर एटीएम की एम। पावर डेल्टा एनजी। यस, तो सेम वे में ही आएगा, और वी कैन सिंपली से दिस विल बिकम एटमॉस्फेयर, जैसे वहां पे डिराइव किया था, सेम मैनर this will also get derived like this, or you can say Kp will be equal to atmosphere to the power delta Ng. And you know what is delta Ng now? Why I'm using delta N? Change in moles, and G matlab you have to measure only which moles? gaseous moles. Gaseous. Moles. So to make it more clear, I am writing like this. मतलब it can be, मतलब जैसे तुम लोग टॉर में भी मेजर करते हो, तो I can also write delta मतलब टॉर, मतलब इस किसी भी वे में मेजर कर लो उसे, पास्कल्स, जनरली वी यूज एटमॉस्फेयर, सो आई एम आल्सो यूजिंग एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ सी, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं आएगा कि केस, वो दे विल सिंपली राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दे विल नॉट स्पेसिफाई अबाउट केसी और केपी। बट अगर जो इंफॉर्मेशन है हमारी, वो अगर कंसंट्रेशन में दी हुई है, मतलब मोल्स पर लीटर दिए हुए हैं, सो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट तुम्हें क्या निकालना है। अगर हमारे जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन की, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, तो हमें बाय डिफॉल्ट केसी निकालना है या केपी निकालना है? Kc. From KC. KC. केसी निकालना है। एंड सिमिलरली अगर हमारी जो रिएक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो भी हमारा वैल्यूज है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया है, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो हमें जो आंसर है वो किसके टर्म्स में निकालना है? Kp. Kp. So sometimes they will not specify it to you. You have to yourself judge कि हमें किसके terms में निकालना है. Can you get my point? According to the information given there, we will have to check ourselves कि हमें किसके terms में चीजें निकालनी है. Okay, so now again I am giving you some questions. तो तुम पहले क्या करोगे? Because you have already done, यहाँ KC लिखो, ठीक है? फिर उसके यूनिट्स लिखना, एंड देन यहाँ पे KP लिखना और उसके यूनिट्स लिखना। ये सारे कॉलम्स फिल करो अपने आप से। एक तो प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा और एक नया हो जाएगा। तो आई थिंक ये कॉलम तो सबने फिल कर लिया होगा। वेरी इजी नाउ। सो ओवर हेयर व्हाट इज इट? यही आया होगा, चेक करो मैंने कहीं गलत लिखा है क्या। सॉरी, ये PCl5 है, माय मिस्टेक। चेक द एरर्स। Is it fine? Is it fine for every reaction I have written? Yes, ma'am. ठीक है। सो नाउ यहाँ पर यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ ना छोटे से डेल्टा Ng की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होने वाली है? 2। यहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होने वाली है? इट इज गोना बी 1।
Here it will be, what will be the value of delta Ng? -1 Yes, and then, +1. yes. So now tell me the units. Over here it is going to be moles per liter per square. Very good. Then power 1. यहाँ पर, Moles per liter raised to the power -1. yes, can I write moles per liter to the power -1 as liters per mole? Yes, ma'am. तो वो लोग कभी कभी तुम्हें परेशान करने के लिए ऑप्शंस ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन यू गेट माय पॉइंट? हाउ टू कन्वर्ट? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ ना कुछ तो करेंगे. अब ये नई चीज हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है, बिकॉज ये तो तुमने ऑलरेडी करा ही था. दिस इज समथिंग न्यू. सो नाउ टेल मी हाउ विल यू राइट Kp? It will be what? Partial pressure of nitrogen raised to the power 1. Same way we have to do, only the concentrations or the active mass is getting replaced by partial pressure, and this will become partial pressure ammonia to the power 2. Can you follow? Yes, ma'am. Similarly over here, पहले product में क्या है? SO2, उसका coefficient क्या है? 2. So partial pressure of SO2 to the power 2, partial pressure of oxygen raised to the power 1, and partial pressure of SO3 to the power 2. Can you get it? And जिनके powers 1 है ना, उनके अगर मैं ना भी लिखूं to the power 1 तो चलेगा. You know all these things. This will be what now? See over here. Here the partial pressure will only depend on pressure of CO2. कैल्शियम कार्बोनेट और CO तो प्रेशर लगाएंगे ही नहीं. Yes, ma'am. Here the value of this Kp or Kc will depend upon only CO2, because others will not show any change. And if we come to units, so again here अगर मैं atmosphere को ले लूं, so it will become what? The power 1 upon atmosphere, and again atmosphere, and again atmosphere. So derivation समझ में आई अभी तक के questions की? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैं ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वो लोग मतलब बैलेंस करके दे, क्या पता हम लोग को बैलेंस करनी है. बेटा उतना उसके तो बाद it is expected that you will do, because मैंने लिखा है stoichiometric coefficient. Stoichiometry तो balance reaction की होती है ना. yes ma'am. So it is not necessary. They will give you. You can do it yourself as well. है ना? Can you get it now? Yes. Yes ma'am. ठीक है. तो अब क्या आता है? देखो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने तरीके के हो गए? How many types? 2 types. 2 types. तो इनको कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशनशिप भी तो होगा. Will there be a relationship or not? Yes, ma'am. तो कुछ ना कुछ रिलेशन भी होगा. Kp एंड Kc में कोई ना कोई रिलेशन भी होगा. तो अब हम लोग इसका रिलेशनशिप देखते हैं कैसे होगा. तो लाइक मैं उसी जनरल इक्वेशन को लिखूं जो पहले मैंने लिखी थी. कैन आई मेक इट लाइक दैट? उसी को कंटिन्यू करूं? विल यू बी एबल टू Yes, रिलेट ma'am. टू इट? आई डोंट वांट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स. तो वहां पर उसी इक्वेशन के हिसाब से अगर इफ आई गो, सो द वैल्यू ऑफ Kc वाज कमिंग समथिंग लाइक दिस, and similarly value of Kp was coming something like this. है ना सही? ठीक है, सही लिखा है. Is it fine? Now what does ideal gas equation tell us? That partial pressure is equal to concentration times of RT, or active mass times of RT. So if I have to write partial pressure of A, how will I write? How will I write partial pressure of A? Will I write like this? Am I correct? So partial pressure of B, how will you write?
partial pressure of C will become what? Partial pressure of D क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. ठीक है, this is B, this is C and this is D. फाइन. अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज जो मैंने यहाँ से लिखी है ना, उनको हम पुट कर देते हैं. लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ C, आई एम राइटिंग एक्टिव मास ऑफ C and then RT, and this was raised to the power of O, and this is also raised to the power of O. Similarly, in place of partial pressure of D, this I'm replacing with this. Can I replace? Can we replace this? देखो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो क्या है, एक्टिव मासेस को आई एम राइटिंग ऑन वन साइड एंड रेस्ट ऑफ द आरटी टर्म्स हम लोग एक साइड लिख लेते हैं, क्योंकि उनको तो हम लोग ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज कमिंग लाइक दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, एंड आरटी वाले टर्म्स एक साथ ले जाएं तो क्या बनेगा? RT raised to the power delta NG. Very good. And this is what? This is what? This is KC? KC. KC. So what is KP and KC related as? KP and KC can be related as this delta NG. Can we relate them? Yes, ma'am. Yes. देखो, can we relate them? ठीक है, अब मुझे बताओ KP बड़ा होगा या KC बड़ा होगा या कोई भी कुछ भी हो सकता है. What do you think? What do you think? हम वेरी कर सकता है. वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, इस पूरे चैप्टर में कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला, कोई भी फिक्स्ड यूनिट कुछ भी नहीं होने वाला. तो चेक करो, अगर हमारा डेल्टा एनजी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, या फिर पॉजिटिव आया, या फिर यूं कहो गैशियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट गैशियस से टोटल प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज्यादा हुए, तो उस केस में क्या हो जाएगा? केपी विल बी ग्रेटर और केसी विल बी ग्रेटर. KP. Get? KP. Yes. Just give me a sec. Yes, come back. So tell me, who is going to be greater? In this KC. KC. हम ऊपर वाले में KP हो जाएगा. Yes, नीचे first में case में KC. अगर हम बात करें तो KP will be greater because you can see delta NG ND का स्क्वायर कुछ भी इस तरीके से लिखोगे. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? Will it become less? KC बड़ा हो जाएगा. Yes. और अगर हमारा डेल्टा NG की वैल्यू 0 आती है, मतलब दोनों बराबर हो जाते हैं, तो Equal. KP और KC इक्वल हो Equal. जाएंगे. इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पे कुछ भी चीज देखो सेम नहीं रहने वाली है, हमें इक्वेशन टू इक्वेशन चीजें वैरी करते हुए मिलेंगी. सो तुम्हें यहाँ पर मैं फिर से तुम्हारे को कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ. ओके, एंड देन यू विल राइट द रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, एंड यहाँ पर लिखोगे विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. इफ यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू विद दैट तो वो लिख सकते हो, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. तो अब मैं कुछ और नए रिएक्शंस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज कुछ वाली तो तुम लोग को पता ही चल गई है. तो सपोजिंग आई एम गिविंग यू KClO3. यस, तुम यहाँ डेल्टा Excuse me, ma'am. यस. मैम बस एक सेकंड लास्ट स्लाइड लगा देंगे, एक चीज देखनी है. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Fine. Okay, so yes, so this is my equation. I'm giving you certain equations, you will do them. Gaseous, then
Okay, so let us check. So now tell me यहाँ पर what is going to be the value of ng. First example में what will be the value of ng? 3/2. Okay, 3/2. next example. -2. -3. -3 ना 2 -5 -3. हाँ -3 चेक करो बेटा. Am I correct? मैम 4 - 6 हो जाएगा ना? 4 कहाँ से होगा, ये सॉलिड अच्छा है. सॉरी सॉलिड है. Solid है. -3. ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, इसीलिए मैं बार बार एग्जांपल्स चेंज कर रही हूँ. एंड फॉर द लास्ट वन मैम 1. -1. -1. यस मैम Yes. -1. अब अगर इसमें मैंने तुम्हें बोला के, अब तुम्हारा होमवर्क यही है, इनका केपी फॉर्मूला लिखोगे, केसी फॉर्मूला लिखोगे, यूनिट्स लिखोगे, ये सब कर पाओगे? Yes यस मैम. मैम. ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं केपी और केसी का रिलेशन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट कॉलम वही था. सो व्हाट विल बी द रिलेशनशिप? केपी इज इक्वल टू केसी आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2. तो अब बताओ केपी बड़ा है या केसी बड़ा है? केपी. KP. KP is greater than KC. Come over here. KP is going to be KC RT to the power -3. -3 का मतलब क्या हो गया? KC बड़ा है. केसी इज Yes, or we can write KP RT cube is equal to KC. So you can check yourself. Mathematical induction लगाया. So you can check yourself. Tell me KP is gonna be smaller than KC. Can you do it yourself now? Yes मैम. यस मैम. ठीक है, नाउ सी योरसेल्फ. सो सी अगर नेगेटिव पावर आई तो फिर से वो उस साइड चली जाएगी, दैट मींस के सी आर टी टू द पावर -2. एंड अगेन हमारा रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे ज्यादातर एग्जांपल्स के सी के ग्रेटर वाले आ गए, बट अदरवाइज there is no fixed format to do the questions. Every time you need to do every type of calculation, like derive the formula, derive the units, derive the relationship, सब कुछ change होने वाला है. ठीक है, can you get it? Can you get it? Yes ma'am. I'm just Yes, ma'am. changing the slide. I just want to show one example. I just want to take one example. That is, चलो I'll write in the next one only. क्यों हम पीछे जाए, ढूंढना पड़ेगा. So supposing I give you one more example in this case. So I give you like H2 gaseous plus Cl2 gaseous converts and gives me 2 HCl, and which is also in gaseous state. So tell me Ng की value क्या होने वाली है? 0. Okay, that means Kp is equal to Kc RT to the power क्या हो जाएगा? 0 0. 0. Or 0. anything to KP the equal to power KC. 0 is yes. So is यहाँ 1. yes, anything to the power 0 is 1. So in this case, what is the relationship? In this Both are equal. both are KP equals equal. to KC. Yes, so I told you ना, इसमें यहाँ कुछ भी चीजें सेम नहीं रहने वाली है, सब कुछ चेंज होने वाली है. देखो ये 3 केसेस आए थे कि हमारा केपी बड़ा भी हो सकता है, केसी से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है. तीनों केसेस समझे? It can Yes, be Yes greater, ma'am. it can be smaller, and it can be equal to the values. So did you get it till here? Yes ma'am. ठीक है. सो आज के क्लास में तुमने सिर्फ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज किया, डेरिवेशन ऑफ यूनिट्स किया, मतलब इफ आई डू इट, सो यू बेसिकली डिड, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक इक्वेशन में, हर एक क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला डिफर करेगा, हमारी यूनिट्स डिफर करेंगी, हमारे रिलेशनशिप डिफर करेगी. तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ तुम उसका डेरिवेशन समझ पाए हो. सो आर यू क्लियर विद द डेरिवेशंस नाउ? Yes ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So you can write it again, redo them, try to derive your formulas again and something. And in the next class, जो भी अब हमारा next class होगा इसी week में, so उसमें फिर हम लोग इसका numerical application मतलब कैसे करना है वो करते हैं.
Can we keep it till here for today? मैम एक बार Yes, वो ma'am. स्लाइड लगा दीजिए केपी जहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया था।